It really showed the cultural art of Haryana. We have already presented some programs to welcome our guests and to entertain the audience. लेकिन अभी तक हमने आज उपस्थित सभी मेहमानों और दर्शकों को अपने स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जी हाँ प्यारे दर्शकों, अब समय है आपके साथ अपने स्कूल की कुछ उपलब्धियों के बारे में बात करने का। समय है आप सबको हमारे स्कूल में होने वाली गतिविधियों के बारे में बताने का। जी हाँ, और साथ ही समय है आपके समक्ष भविष्य की हमारी कुछ योजनाएं प्रस्तुत करने का। So dear audience, we are now going to present the annual report of our school. To tell us about the progress, academic results and some other specific achievements of our school, we hand over the stage to Sujal and Printy. Dear audience, we started the program welcoming the guests and already presented some cultural program. This is just a glimpse of Bonanza to be unfolded during this show of mesmerizing and memorable performance. But before we proceed further, we would like to present the annual report of our school, in which we will share the academic result, our achievements in the field of sports and co-curricular activities, various scholarships awarded to students, activities to empower our staff and students, and addition of facilities and infrastructure for our students. So to begin with, here comes Nidhi with academic report. Thanks. At first, I would like to draw everyone's attention towards the data on the screen, which is a comparison of overall board result of CBSE and of our school. In class 12, overall pass percentage of CBSE board is 88%, whereas our school's pass percentage, like always, is 100%. In class 10th, CBSE board result is 93.6%, whereas, like always, our school's result is 100%. In class 10th, the number of students who scored more than 90% in CBSE board is 9.4. But the same percentage of our school is 12.8. In class 12, percentage of students who scored above 95% in CBSE board only 1.4%. But in our school, this percentage is 4. The students who scored more than 90% in CBSE board is 7.1%. But in our school, this percentage goes up to 18.5%. Now the photographs and results of class 12 toppers is on the screen. Monica secured 96.8%, Divya earned 95.6%, Mehak secured 95.2%, Mamta got 94%, Muskan achieved 93.6%, Khushbu achieved 93.4%, Chanchal got 92.6%, Sanjana achieved 92.2%, Sneha got 91.8%, Anu obtained 91.2%, Pratibha got 90.8%, Diksha achieved 90.6%, Sahil achieved 90.2%, Isha got 90%, and Neha also obtained 90%. Now the photographs and results of class 10th toppers is on the screen. Tanisha earned 94.6%, Harja Singh obtained 94%, Parveen achieved
94%. Naman got 93%. Divjot Singh obtained 92%. Kashish got 91.8%. Aryan got 91.2%. Ankit obtained 90.4%. Pragati also achieved 90.4%. Parmila got 90%. And Sneha also obtained 90%. This year, one of our ex-students, Suresh Kumar, has been selected for Haryana Civil Services. He is present here with us today. So now I request Suresh Bhaiya to come on the stage and express his views. और समस्त ग्रामवासियों, सबसे पहले तो आप सब में मेरा राम राम। मेरी जो यात्रा है स्कूल की वो शुरू हुई थी सुखराम गीता विद्या निकेतन स्कूल से, जब स्कूल गांव में था। जिस दिन मैं स्कूल में एंटर किया और आखिरी दिन बाहर निकला, मैंने हर रोज बहुत कुछ सीखा है। और आज जो भी मैंने हासिल किया है वो स्कूल की देन है। अगर मैं संक्षिप्त में बात करूं तो इस स्कूल से मैंने 3 चीजें बहुत जरूरी सीखी हैं। सबसे पहले स्कूल ने दिए हैं मुझे सपने। किसी इंसान से उसके सपने ले लो, बस वो जिंदा लाश है। सबसे जरूरी है सफलता में सपने। बाकी चीजें पैसे, गाइडेंस आती रहती हैं, पर सबसे जरूरी होते हैं सपने। सपने दिखाने में सबसे बड़ा योगदान है श्री रामस्वरूप जी आर्य का। लोग प्रेरणा के लिए गौतम को पढ़ते हैं, महात्मा गांधी को पढ़ते हैं, पर मुझे कभी कोई जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि मेरे सामने रामस्वरूप जी आर्य थे। रामस्वरूप जी आर्य ने सिर्फ ये नहीं बताया कि सफल होना जरूरी है या फिर बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे सफल लोग हैं दुनिया में, पर जैसे हमारे प्रिंसिपल जी ने बताया था कि सिर्फ खुशी जिंदगी जरूरी नहीं है, ऐसी जिंदगी जीनी जरूरी है जो किसी के काम आए। तो रामस्वरूप जी आर्य से मैंने सीखा है कि कैसे एक इंसान इस गांव की मिट्टी से उठ के अमेरिका तक अपना परचम फहरा सकता है। तो अगर इस गांव का कोई आदमी ऐसा कर सकता है तो मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ। मैं एक ऑफिसर बन गया हूँ। लोग मुझे बताते हैं कि आप कामयाब हो गए हो, पर मैं अपने आप को बताता हूँ कि मैं कामयाब उस दिन होऊंगा जिस दिन जो रामस्वरूप जी आर्य ने इस गांव के लिए किया है, अगर मैंने उसका आधा भी कर दिया इस गांव के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, उस दिन मैं सही मायनों में कामयाब हूँ। दूसरी जो चीज स्कूल ने मुझे दी वो है शिक्षा। और मेरे पिताजी किसान है, जैसे कि यहाँ जो मेरे सामने लोग बैठे हुए हैं वो लगभग सारे किसान ही हैं। तो पिताजी जैसे गरीब परिवार से थे, तो उस समय मुझे आज भी याद है 200-250 रुपए फीस होती थी हमारी, और मुझे स्कॉलरशिप ज्यादा रुपए की मिल जाती थी, फीस कम होती थी। तो मतलब मैं स्कूल से पैसे कमा के लेके जाता था। तो घर वालों को भी हमेशा मोटिवेशन रहता था कि हाँ भाई पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। और इस स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता सिर्फ पढ़ाई नहीं, जब आप खेलते हैं, जब आप डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जब मैंने यूपीएससी आईएएस की प्रिपरेशन शुरू की, बाद में एचसीएस की शुरू की, तो मैं बाकी सब लोगों से बहुत आगे था, बस स्कूल की बदौलत। मेरे में कॉन्फिडेंस था, इंस्पिरेशन थी, इतनी क्वालिटी एजुकेशन थी, सब स्कूल के देन है। और जो कुछ अध्यापकगण जो यहाँ मौजूद भी होंगे, उनमें से कुछ, उनके लिए मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगा। श्री ओम प्रकाश सर पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक कभी पीट कर, कभी सिखा के, फिर जितेंद्र सर जी जिन्होंने संस्कृत पढ़ाया, फिर यहाँ के जो फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स संजय सर, अनिल सर और भी जितने भी टीचर हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ।
और आखिर में मैं आभारी हूँ आप सब ग्राम वासियों का। अब जब मैं प्रशासन में आ गया हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ कर पाऊंगा आप लोगों के लिए या फिर आप जैसे दूसरे लोगों के लिए जहाँ भी होंगे, क्योंकि गांव में रहकर मैंने सब देखा है कि लोगों को क्या दिक्कतें होती हैं और क्या मैं उनके लिए कर सकता हूँ। तो आप लोग भी मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Bhaiya, for your thoughts. Tinu has joined the Canara Bank as first class law officer. So let's see the video. मेरा नाम टीनू है। इसी के साथ मैं हमारे स्कूल चेयरमैन रामस्वरूप आर्या सर को, मैडम संतोष आर्या को और प्रिंसिपल सर को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैंने कक्षा 9 से 12वीं तक की पढ़ाई यहीं से की है और इसके बाद में मैं स्कूल से पास आउट हो गई, पर ये सुखराम परिवार मेरे साथ हमेशा रहा। आज भी मैं इसका एक अटूट हिस्सा हूँ, इस बात की मुझे खुशी है। NHSC की जो स्कॉलरशिप हम लोगों को मिलती है हमारी फर्दर स्टडी करने के लिए, उसने मेरी बहुत मदद की। उसी की वजह से मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे एक अच्छे इंस्टीट्यूट से अपनी पढ़ाई पूरी की। मैंने वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, उसके बाद से मैंने वहीं से अपनी LLB भी पूरी की। और इसी के साथ टाइम रहते हुए एक अच्छी गाइडेंस के साथ जो कि मुझे मेरे टीचर्स की वजह से मिली, मैंने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की और फाइनली मेरा सिलेक्शन भी हो गया और आज मैं कैनरा बैंक में एज अ लीगल ऑफिसर बेंगलोर में पोस्टेड हूँ। और मैं यहाँ पे अपने छोटे भाई बहनों को सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि कोई जीनियस नहीं होता है, बस आपको ना थोड़ी सी हिम्मत दिखानी होती है, थोड़ी सी अलग। इसी के साथ माँ बाप से मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आपको अपने बच्चों पे थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए। ये भरोसा और हिम्मत अगर साथ होना तो इंसान वो सब कर लेता है जो वो करना चाहता है। फिर कोई मुसीबतें कुछ भी हो वो बहुत बड़ी नहीं लगती है, सब हो जाता है टाइम के साथ, आज नहीं तो कल, पर सब हो जाता है। इसी के साथ मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। मैं खालसा माजनान से हूँ। मैं अभी कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल के MBBS फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई सुखराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल कालीरावन से की है। सुखराम स्कूल की टीम बहुत ही सपोर्टिव है। मेरे यहाँ तक के सफर में सुखराम स्कूल ने बहुत साथ दिया है। सुखराम स्कूल के सभी टीचर्स, प्रिंसिपल सर और आर्य सर को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आई एम कविता। करंटली मैं PGIMS रोहतक से MBBS कर रही हूँ और मैंने अपनी 12th सुखराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल कालीरावन से की है। मेरे सिलेक्शन में मेरे स्कूल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। यहाँ के टीचर्स बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव, हार्ड वर्किंग और हाईली क्वालिफाइड हैं। उन्होंने कभी भी मेरा मोरल डाउन नहीं होने दिया और टाइम टू टाइम मुझे मोटिवेट किया। यहाँ की मैनेजमेंट टीम भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव और बहुत अच्छी है। सो अगर किसी को अपने बेटर फ्यूचर और ड्रीम को हासिल करना हो तो यू कैन गो फॉर द SNMPS। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम मोनिका है। मैं गाँव किरमारा डिस्ट्रिक्ट हिसार से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी 12th सुखराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल कालीरावन से पूरी करी है और अभी मैं महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में फर्स्ट ईयर MBBS की छात्रा हूँ। ये सब पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ माई टीचर्स, क्योंकि उन्होंने हमारी डाउट क्लियरेंस एज वेल एज हमारी कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छे से करवाई है और वो हमें समय समय पर मोटिवेट करते रहे हैं। मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी मेरे सभी टीचर्स को, प्रिंसिपल सर को और आर्या सर को, जिनकी वजह से मैं अपने सपने को पूरा कर पाई। Very well in all the parameters and assessments under the guidance, support and supervision of our faculty member. That's all from my side. Thank you so much. Thanks, Nidhi, for the academic report.
जैसा कि हमारे सीनियर्स ने अपने वीडियो मैसेज में बताया कि शानदार परिणाम का क्रेडिट उनके पेरेंट्स और टीचर्स को जाता है, जिन्होंने सालों तक उनको मोटिवेट किया और सफलता के लिए सही राह दिखाई। सुखराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल में हमारा यह विश्वास है कि को करिकुलर एक्टिविटीज भी हमारी शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और इससे बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सहायता मिलती है। इन एक्टिविटीज से विद्यार्थी लीडरशिप, टीम वर्क, कम्युनिकेशन और जिंदगी में जरूरी स्किल्स भी सीखते हैं। So to tell you more about co-curricular activity, here comes Manat. First of all, I like to tell you all, CCA calendar is planned meticulously, including different type of activities for all age group. We organize all literary, cultural and physical activities every month for all classes. There are declamation contest, poem recitation, Hindi and English play, youth parliament, solo singing, extern core, maths quiz, GK quiz, geography quiz, solo sing exhibition, cooking without fire, rangoli, etc. In sports, also we organize inter-house, basketball, kho-kho, chess, badminton, table tennis, etc. We celebrate all national and religious festivals like Independence Day, Republic Day, Vaisakhi, Janmashtami, Dashera, Diwali, and other important days like Teachers' Day, Mother's Day, Children's Day. The NSS unit of school has organized camps and campaign on plantation, cleanliness, organic farming, drugs addiction. Students take part in inter-school competitions. Mamta got first position in Hisar Sahoda English declamation contest. Lavanya Yash and Arzu got first position in declamation contest organized at Rotary Club by local level. And Lavanya got first position in whole district. Lavanya Yash ने हिसार सहोजा दिल्ली पब्लिक स्कूल में आयोजित हिंदी भाषण प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। Thank you. It's all from my side. Thanks Manat for the report on co-curricular activities. हमारे स्कूल में हम खेलों को भी शैक्षणिक पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग मानते हैं। स्कूल में खेल और शारीरिक शिक्षा को भी विशेष महत्व दिया जाता है। खेल हमें स्किल, टीम स्पिरिट, टाइम मैनेजमेंट, अनुशासन और नैतिक मूल्यों की शिक्षा देते हैं। तो अब खेलों की रिपोर्ट लेकर आ रही है स्नेहा। पूरे साल हमारे स्कूल में खेल की अनेक गतिविधियां निरंतर जारी रहती है। इन गतिविधियों और प्रतियोगिताओं में शामिल है इंटर हाउस खो-खो चैंपियनशिप, बास्केटबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट और हैंडबॉल प्रतियोगिता। इसके अलावा स्कूल में योग, एरोबिक्स, होला हॉप और ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स जैसे कि 100, 200, 400, 800, 1600 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉट पुट, डिस्कस एंड रिले रेस आदि। स्कूल में इंडोर गेम्स जैसे कि टेबल टेनिस, शतरंज, कैरम आदि भी करवाए जाते हैं। आउटडोर इवेंट्स के लिए स्कूल के पास 4 एकड़ में फैले हुए खेल के मैदान और इंडोर गेम्स के लिए बड़े हॉल उपलब्ध हैं। हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स ने हिसार सहोदय द्वारा आयोजित खो-खो प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा हिसार सहोदय द्वारा आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में स्कूल की लड़कियों की टीम विजेता बनी और लड़कों की टीम ने उप विजेता बनकर स्कूल को गर्वित किया। ब्लॉक लेवल गेम्स पर स्कूल की लड़कियों ने 3 गोल्ड, 11 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज तथा लड़कों ने 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रिया और मानसी ने हाई जंप में, आर्यन ने शॉट पुट में, वेदिका ने चेस प्रतियोगिता में और जतिन सिंह ने रिले रेस में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनने के बाद स्कूल के खिलाड़ी जतिन सिंह ने रिले रेस में स्टेट लेवल पर सिल्वर मेडल प्राप्त किया। इसके अलावा वेदिका ने चेस प्रतियोगिता में स्टेट लेवल पर 5th रैंक हासिल की। 9 और 10 नवंबर को स्कूल में वार्षिक इंटर हाउस एथलेटिक मीट का आयोजन किया गया।
इस प्रतियोगिता में 1000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भिन्न भिन्न इवेंट्स में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में सुभाष चंद्र बोस हाउस ने ओवरऑल चैंपियनशिप फिर से जीत ली। 10 नवंबर को स्कूल द्वारा बच्चों के पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए अलग अलग आयु वर्ग में विभिन्न इवेंट्स जैसे कि 100 और 400 मीटर रेस, फैमिली रिले रेस, डस्टर रेस, सुई धागा रेस आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 300 से ज्यादा अभिभावकों ने भाग लिया। इंटर हाउस एथलेटिक मीट में अपनी अपनी एज कैटेगरी में चुने गए बेस्ट एथलीट्स को आज स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। धन्यवाद, मेरी तरफ से बस इतना ही। Thanks Neha for the report on sports and games. As she mentioned about the sports scholarship, our school provide many other scholarships worth 10,07,000 to students on merit and means basis. To tell us more about these scholarships, here comes Bhavya. आज हमारे चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर द्वारा अनेक स्कॉलरशिप्स दी जाएगी। यह सभी स्कॉलरशिप्स हमारे स्कूल के संस्थापक श्री राम स्वरूप आर्य एवं श्रीमती संतोष आर्य द्वारा अपने परिजनों एवं मित्रों की याद और सम्मान में प्रायोजित की जाती है। श्रीमती छन्नकौर मेमोरियल स्कॉलरशिप में स्कूल के 60 जरूरतमंद विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म और बुक्स के लिए कुल 3,60,000 रुपए की राशि दी जाती है। स्कूल में बच्चों को हाईएस्ट अटेंडेंस और बेस्ट यूनिफॉर्म के लिए चौधरी मेहर सिंह मेमोरियल स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसकी कुल राशि 70,000 रुपए है। इसके साथ ही स्कूल के बोर्ड टॉपर्स को डॉक्टर अजय हुड्डा एवं डॉक्टर शिवानी अहलावत स्कॉलरशिप दिया जाता है, जिसकी कुल राशि इसके साथ ही स्कूल में बच्चों को 10वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा के बच्चों को 10वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा में के टॉपर्स को डॉक्टर हरीश पॉल मेमोरियल बोर्ड टॉपर स्कॉलरशिप दिया जाता है, जिसकी कुल राशि 1,10,000 रुपए है। 10वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली 4 लड़कियों को श्रीमती उषा रानी अरोड़ा एवं बलदेव राज अरोड़ा स्कॉलरशिप दिया जाता है। कक्षा 1 से लेकर 9वीं तक के हर क्लास के 2 टॉपर्स को चौधरी महासिंह जगलाल मेमोरियल टॉपर स्कॉलरशिप दिया जाता है। इसके साथ ही कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं तक के मैथमेटिक्स टॉपर्स को डॉक्टर घासीराम वर्मा मैथमेटिक्स स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके साथ ही 9वीं और 10वीं कक्षा के साइंस टॉपर्स को हरीश पॉल मेमोरियल साइंस स्कॉलरशिप दी जाती है। इंटर हाउस एथलेटिक मीट में अपनी अपनी एज कैटेगरी में चुने गए बेस्ट एथलीट्स को श्रीमती गुमानी देवी मेमोरियल स्कॉलरशिप के रूप में कुल 42,000 रुपए की राशि दी जाती है। इसके साथ ही चौधरी महासिंह जगलाल मेमोरियल स्कॉलरशिप एक ओपन एग्जाम है, जिसमें कुल 72,000 रुपए की राशि दी जाती है। इस प्रकार से स्कूल द्वारा कुल 10,06,000 से ज्यादा की राशि हर वर्ष होनहार एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों को दी जाती है। धन्यवाद, मेरी तरफ से बस इतना ही। Thanks Bhavya for the report on scholarship. As you know that infrastructure plays a crucial role in education of students for their safety, security and learning environment. The resources are very important for health and hygiene. Integration of technology, teaching facilities, implementing the latest techniques and pedagogies, empowerment of faculty and students. To tell us more, here comes Arush. I would like to tell the audience that as per the announcements made last year, fully air-conditioned Channakor block with all the modern amenities and facilities was made available to kindergarten students from the beginning of this session. We have increased the capacity of our off-grid solar power system from 60 kilowatt to 180 kilowatt. We have procured a new 125 kilowatt genset for emergency power supply. The school has interactive flat panels in all 10 senior classrooms. The school has smart screen with internet facilities in all other classrooms. The school's computer lab has more than 40 computers with internet facility.
The library has more than 6,500 books on different subjects and areas to fulfill the quest for knowledge. The school Gumani Devi block is fully dedicated on co-curricular activities like dance, music, arts and craft. The school has separate biology, physics and chemistry lab. The school organizes many motivational lectures and career counseling workshops for the students. We also organize many workshops and trainings for the teachers under the CBSE Center of Excellence and other impaneled agencies and resource persons. We also organize many awareness programs for the parents to make them aware about the challenges of parenting and upbringing of children. Thank you. That is all from my side. Thanks Arush for a very vital report on school's infrastructure and facilities. The credit for all this amenities, facilities and initiative goes to our founders. It is their vision, motivation and affection for students which inspire to perform better and better. अंत में मैं अपने प्यारे दर्शकों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारे स्कूल का एम्बियंस, यह पूरी डेकोरेशन, स्टेज सेटिंग, रंगोली अच्छी लगी हो तो इसका क्रेडिट जाता है हमारी आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर प्रगति मैम, नारायण सर, एनएसएस यूनिट इंचार्ज श्री राजेश कुमार, स्पोर्ट्स टीचर कमलजीत सर, ज्ञानेश्वरी मैम, श्रुति मैम और इसी के साथ हमारी एनएसएस यूनिट के सभी वॉलंटियर्स और सीनियर स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरी मेहनत और लगन से आज के इस फंक्शन के लिए इस कैंपस को इतना सुंदर बनाया है। We will come back next year with more information and achievement to make everyone proud on SRMPS. Till then, bye bye, sayonara.